تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم پرانے عہد نامے میں سے آموز کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو انبیاء اصغر کی لکھی کتابوں میں سے ایک ہے، اور آج کی قسط میں ہم دوسرے باب کا مطالعہ کریں گے، پہلی آیت سے 5ویں آیت تک۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، اس سے پہلے کہ ہم پہلی تا 5 آیات کا مطالعہ شروع کریں، کیا آپ ہمارے ناظرین کو یاد دلائیں گے کہ گزشتہ قسط میں ہم نے عدالت کے متعلق کیا سیکھا؟ ہم نے جانا پہلے اور دوسرے باب میں ہمیں خداوند کے 8 مقاموں پر عدالت کے متعلق بتایا گیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ان 8 مقاموں کی تقسیم یوں ہے کہ 3 کا خدا کے لوگوں سے خونی رشتہ تھا، یہ کل ملا کر 3 تھے، اور پھر 3 دوسری قومیں بھی ہیں جن کا دراصل خدا کے لوگوں کے ساتھ ایک خونی رشتہ تھا، یہودا اور اسرائیل۔ اور میں کہوں گا کہ ہم نے جانا اور دیکھا کہ پچھلے باب میں خدا کی عدالت ہم نے 5 قوموں پر ہوتے ہوئے دیکھی، جو کہ دمشق، غزہ، اسور، ادوم اور امون ہیں۔ اور آج ہم قوموں کے تیسرے حلقے کے بارے میں جانیں گے جو کہ خدا کے ساتھ خونی رشتہ رکھتے ہیں، جو کہ مواب ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مطالعے میں آگے بڑھیں، میرا سوال ہے، مطلب واضح طور پر ان لوگوں پر عدالت کی جا رہی ہے جو بنی اسرائیل سے خونی تعلق نہیں رکھتے۔ ہم انسانی اعتبار سے یہ کہنے کی جرات کر سکتے ہیں کہ ایک پردیسی جو اسرائیل کا رشتہ دار نہیں انہیں پریشان کر سکتا ہے، لیکن جب بات بنی اسرائیل کے خونی رشتہ داروں کی آتی ہے، خاص کر جبکہ وہ ادوم کا ذکر کرتا ہے، یا جب وہ بنی امون کی بات کرتا ہے، یا پھر مواب کی بات کرتا ہے، تو یہ اسرائیل کے خونی رشتہ دار ہیں۔ انسان کے دل کی وہ کون سی کمزوری ہے جس کے سبب اسے اپنے خونی رشتہ داروں سے بھی تکلیف ہوتی ہے؟ دیکھیں، بائبل ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ جسم بالکل بے فائدہ ہے، اور جسمانی رشتے ہمیں دور کو لے جاتے ہیں۔ پیدائش کے 4 باب میں ایک بھائی ہی بھائی کے خلاف نہیں ہوا۔ کیا ادوم اور یعقوب یا یعقوب اور عیساؤ جڑواں نہیں جو ایک ہی بدن سے پیدا ہوئے؟ لیکن ان کے درمیان واضح عداوت تھی، اور ان سے ان کی یہ عداوت اگلی نسلوں تک منتقل ہوئی، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ بھلے ہی ہم نیا عہد نامہ دیکھ لیں تو میں کہوں گا کہ یہودا اسکریوتی واحد تھا جو کہ یہودا سے تھا، جبکہ دوسرے شاگرد گلیل کے تھے۔ صحیح۔ لیکن اس نے نہ صرف اپنے خداوند کو دھوکہ دیا، صحیح، یعنی اس ببر کو جو یہودا کے قبیلے سے اسی نکلا، قبیلے سے۔ سو کچھ بھی ہو جائے، جسم پر کوئی بھروسہ نہیں، آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ دونوں فریقین کے درمیان کہیں بھی کسی تنازع میں کہا جاتا ہے کہ تیسرے فریق کی مداخلت لازمی ہے جو انہیں ایک دوسرے کے مخالف کرتا ہے، لیکن فساد جو ہے وہ انسان کے دل میں بستا ہے۔ بنی اسرائیل جسمانی طور پر خداوند یسوع کے رشتہ دار تھے، لیکن انہوں نے خدا کے بیٹے کا قتل کیا۔ صحیح۔ یہودا نے خدا کے بیٹے کو دھوکہ دیا۔ جی ہاں۔ شکریہ۔ ابھی میں دوسرے باب کی 1 تا 5 آیات پڑھوں گا، اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ مواب کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ اس نے شاہ ادوم کی ہڈیوں کو جلا کر چونا بنا دیا ہے۔ پس میں مواب پر آگ بھیجوں گا اور وہ کریوت کے کسروں کو کھا جائے گی، اور مواب للکار اور نرسنگے کی آواز اور شور و غل کے درمیان مرے گا، اور میں قاضی کو اس کے درمیان سے کاٹ ڈالوں گا اور اس کے تمام عمرہ کو اس کے ساتھ قتل کروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ یہودا کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے خداوند کی شریعت کو رد کیا اور اس کے احکام کی پیروی نہ کی، اور ان کے جھوٹے معبودوں نے جن کی پیروی ان کے باپ دادا نے کی ان کو گمراہ کیا ہے۔ پس میں یہودا پر آگ بھیجوں گا جو یروشلم کے کسروں کو کھا جائے گی۔ میں چاہوں گا کہ مواب پر تبصرہ ہو۔ یہ لوگ جو جسمانی اعتبار سے خدا کے رشتہ دار ہیں، ان کا گناہ کیا ہے اور انہوں نے کیا کیا؟ موابیوں کو کیا سزا ملی؟ یہ لوگ لوط کی نسل سے ہیں، لوط کی اولاد ہیں، جو کہ لوط اور اس کی بیٹی کے درمیان گناہ آلودہ تعلق کا بیج ہیں۔ مواب اسی تعلق کا پھل ہے، وہ موابیوں کا باپ کہلاتا ہے۔ در حقیقت ہم موابیوں سے 3 طرح سے ملاقات کرتے ہیں اور ان پر غور کرنے سے فائدہ ہوگا۔ پہلی ملاقات جب اس کا ظہور ہوتا ہے اور جو کہ شرارت سے بھرپور ہوتا ہے۔ صحیح۔ ان کی شروعات میں
शरारत है सही। कि लूत और उसकी बेटी का नापाक रिश्ता ही नहीं, हम उनकी बिला जवाज दुश्मनी को भी देखते हैं। और जब शाहे मुआब बलाम को बुलाता है कि वो इसराइल पर लानत करे, और ये गिनती की किताब के 22वें, 23वें और 24वें अबवाब के मुताबिक है। और आखिर में बनी इसराइल मुआब की औरतों के साथ जनाकारी करते हैं और एक दिन में 23,000 इसराइली मारे जाते जी। हैं, और मुआब की तरफ से अदावत भी वाज़ेह है। और फिर हम उसके बेहद जुल्म को दूसरे सलातीन उसके 3 बाब में भी जानते हैं। गालबन अमूस भी इसी तरफ इशारा करता है। वो कहता है क्योंकि उसने शाहे अदूम की हड्डियों को जलाकर चूना बना दिया है। अगर हम दूसरे सलातीन के 3 बाब को फिर से देखें तो हम उसकी कहानी को पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत वाज़ेह तो नहीं है, मगर शायद जो अमूस कह रहा है दूसरे सलातीन की तरफ इशारा करता है। और अगर अमूस की ये आयत दूसरे सलातीन 3 की तरफ इशारा नहीं करती तो इसका मतलब है कि वो ऐसा करने के आदी तो थे। ये उनकी फितरत है। ये उनकी फितरत है, वो जिंदों और मुर्दों के साथ ऐसा करते थे। सही। और हम दूसरे सलातीन 3 बाब में क्या पढ़ते हैं? 26वीं आयत में लिखा है कि जब शाह मुआब ने देखा कि जंग उसके लिए बहुत सख्त हो गई, तो उसने 700 शमशीर जन मर्द अपने साथ लिए ताकि सफ चीर कर शाहिदुम तक जा पड़े, पर ऐसा ना कर सका। तब उसने अपने पेलौठे बेटे को लिया जो कि उसकी जगह बादशाह होता और उसे दीवार पर सोखनी कुर्बानी के तौर पर गुजराना। जी। इसराइल पर कहर शदीद हुआ, सो वो उसके पास से हट गए और अपने मुल्क को लौट आए। सो जैसा कि मैंने कहा कि अगर अमूस जो कुछ यहाँ पर कह रहा है वो उस जंग की तरफ इशारा करता है, तो हम यहाँ पर मुआब की बर्बरियत को वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं तो ये इससे भी बदतर है। तो फिर इसका मतलब ये है कि वो ऐसा करने के आदी हो चुके थे और वो बार बार ऐसा ही करते थे। हमारे नाजरीन चाहेंगे कि वो मुआब के लोगों को बेहतर तौर पर समझें और उनके शहरों को भी, जिनका जिक्र दूसरी आयत में हुआ। बस मैं मुआब पर आग भेजूंगा और वो करियूत के कसरों को खा जाएगी। क्या हमारे पास बतौर शहर करियूत के मुआबियों का शहर होने के हवाले से कोई मालूमात मौजूद है? कोई सियासी सरमाया, मजहबी सरमाया, क्या उस शहर में कुछ खास किस्म की रसूमात थीं? दरअसल पहले और दूसरे बाब में हम बहुत से शहरों के मुतल्लिक पढ़ते हैं। मुझे एक बार किसी की बात बहुत पसंद आई कि बाइबल मुमताज़ है क्योंकि ये कहानियों की किताब नहीं बल्कि ये जोग्राफियाई किताब है। मतलब कि और किताबें भी हैं जहाँ मकामात का जिक्र है जो हमारी दुनिया में मौजूद नहीं है, सही। लेकिन हर वो जगह जिसका बाइबल में जिक्र है उसका तारीखी तौर पर सबूत मिलता है। जी करियूत मुआब का एक शहर था और कहा जाता है कि ये एक मजहबी सरमाया था। वो तमाम शहर जिनका जिक्र यहाँ हुआ बहुत ही दुरुस्त तौर पर हुआ है, और इससे हमें इस किताब की अजमत मालूम होती है, ना सिर्फ इसके कि हमें कुछ बताने की वजह से, बल्कि इसलिए कि इसमें कोई भी गलती या कोई मनगढ़ंत कहानी मौजूद नहीं जिसकी सही। कोई बुनियाद मौजूद ना हो। आपने पिछली किस्त में पहले ही तस्करा कर रखा है कि जब बाइबल में किसी बात का जिक्र हो तो उसका मकसद किसी खास नुक्ते पर रोशनी डालना है। लिहाजा इसराइल के 5 शहरों में जात का जिक्र नहीं है क्योंकि जात की दीवारें गिरा दी गईं और वो जमीन बोस हो गई। सो बाइबल जब किसी बात का जिक्र करती है तो वो एक खास नुक्ते पर रोशनी डालना चाहती है। सही। तो एक शख्स जी। कम फहम की बदौलत जो है दुख उठाता है, लेकिन उसे खुदा के कलाम को समझने की कोशिश करनी है। मुआब का पत्थर जो कि हाल ही में दरियाफ्त हुआ है उस जंग की तरफ इशारा है जिसका जिक्र दूसरे सलातीन के 3 बाब में हुआ, और इससे हमें पता चलता है कि खुदा की किताब हमें सही। मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुनाती, और यकीनी तौर पर हमें ये समझना है कि यह हमें तारीखी मालूमात देती है और इसके जुग्राफियाई अदादो शुमार भी हकीकी हैं। तारीख के एक मशहूर साइंसदान ने, जो विलियम रामजे कहलाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नए अहदनामे की तारीख के नाकिद के तौर पर आगाज किया था, खासकर जो कुछ लूका ने अमाल की किताब में लिखा उसके हवाले से। उसने अपना काम शुरू किया इस इरादे के साथ कि वो उसमें गलतियां ढूंढेगा, लेकिन जब वो अपने सफर से वापस लौटा उसने किताब लिखी जो अमाल की किताब का तारीखी तौर पर दिफा करती है और उन मुकालमात का जिनका जिक्र उस किताब में है, क्योंकि उसमें बहुत से मुकालमात हैं। और उसने कहा कि कोई पहली सदी ईसवी की तारीख को तब तक नहीं जान सकता जब तक कि वो अमाल की किताब का मुताला ना करे। ये रसूलों के अमाल हैं जो कि खुदा की किताब है। खुदा की किताब बेशक। कि हमने देखा कि खुदा की अदालत उन लोगों पर हुई जिन्होंने उसके लोगों को सताया, लेकिन मुआब ने अदूम को सताया, तो फिर खुदा ने मुआब की अदालत क्यों की? खुदा दुनिया का इंसाफ करने वाला है और वो खुदा के लोगों को सताने वालों की अदालत करता है। खुदा बेसजा नहीं छोड़ेगा। तो क्या हो अगर वो खुदा के लोगों को नहीं बल्कि किसी और को हरासा करे, किसी और पर तशद्दुद करे और किसी और से बेइंसाफी करे?
तो क्या खुदा कहेगा कि इससे मेरे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई तो मुझे भी परवाह नहीं? जी। नहीं, खुदा अदल करने वाला है जो आदिल और रास्त है। जब मुआब ने बर्बरियत की रूह जाहिर की, यानी जो कुछ उन्होंने यहाँ किया, उन्होंने अदूम की हड्डियों को जलाकर चूना बना दिया, और ये बड़ी बर्बरियत और जुल्म है। अफसोस कि हम आज भी ऐसी ही रूह के मुतल्लिक पढ़ते हैं, और हम लोगों को जिंदा या मुर्दा जलाने वालों के मुतल्लिक पढ़ते हैं। ये बर्बरियत है। मैं क्या कहूँ? क्या ऐसे लोग भूल जाते हैं कि खुदा उनकी अदालत करेगा? क्या वो खुदा को अपने सामने नहीं रखते? अफसोस कि मुझे लगता है कि वो खुदा को अपने सामने नहीं रखते। सही, खुदा वाकई दुआओं का सुनने वाला है और वो मजलूमों की फरियाद को भी सुनता है। हर जगह, चाहे वो उसके लोग हों या कोई दूसरा शख्स हो जो भले ही खुदावंद को नहीं जानता, खुदा मजलूमों की फरियाद को सुनता है। खुदा तो जानवरों का भी दिफा करता है। सही। क्या उसने बलाम से ना कहा कि तूने गधी को क्यों मारा? किसी ने गधे को मारना चाहा, क्या कोई ये बड़ी बात है? खुदा का फरिश्ता उसके पास आया कि तू अपनी गधी को क्यों मारता है? सो अगर आप किसी जानवर को नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी अदालत होगी। तो इंसान को नुकसान पहुंचाना किस कदर बड़ी बात है, जिससे आप जानते तक नहीं, आप खुद को उड़ा लेते हैं ताकि दूसरे मर जाएं। ये क्या है? ये क्या रूह है? क्या ये जहन्नुम जी। की कोई इब्लिसी रूह ठीक नहीं? है। जो दूसरों का खून बहाकर खुशी हासिल करता है, उसने ये अपने बाप से सीखा है। बाइबल हमें यह बताती है, यानी कत्लो गारत और खून रेजी। सो यहाँ मुआब ना सिर्फ जिंदगी से नफरत रखता और कत्ल करता है, बल्कि जिस्मों को मस्क करता है, वो हड्डियों को जलाता है। लेकिन भाई अयाद, इससे पहले कि हम मुआब पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करें, मुआब से एक जबरदस्त मुकद्दसा निकली रूत, जी। और मैं कहूंगा कि किसी ने उसे सोसन से तशबीह दी है, जो कि कीचड़ के दरमियान हो, या सफेद सोसन जो पत्थर के दरमियान हो। सो अगर मुआबी पत्थरों की मानंद थे क्योंकि उनके दिल सख्त थे, और कीचड़ के जैसे थे क्योंकि उनकी सोच गंदी और आलूदा थी, तो भी खुदावंद ने उनमें रूत को पैदा किया, जो कि एक जबरदस्त लड़की थी जो उस कौम से निकली थी। एक किताब जो उसके हवाले से उसके नाम से लिखी गई। सही। तो नए अहदनामे के पहले सफ़े पर हम रूत मुआबी के मुतल्लिक पढ़ते हैं, ये है हमारा खुदा, जी। कोई चीज़ उसे रोक नहीं सकती, मतलब मुश्किल हालात के अंदर भी। खुदावंद के यहाँ मुकद्दसीन है, सब मुकद्दसीन खसूसन कैसर के घर वाले तुम्हें सलाम कहते हैं। उनमें से एक ने हेरोदिस के हमरा परवरिश पाई, लेकिन वो पहली सदी में मसीह का खादिम था, और ये अमाल की किताब के 13वें बाब में लिखा है। शायद जो कोई हमें इस वक्त देख रहा है वो किसी ऐसी तंजीम का हिस्सा हो सकता है जो किसी को जान से मारती है, कत्ल करती है, खून बहाती है। सो खुदा की किताब कहती है कि आपके लिए भी मौका है, जब आप मसीह को कबूल करते हैं, जैसे रूत मुआबी ने किया। वो मुआब से थी जिसकी तारीख ऐसी है, मसीह कातलों को मुकद्दसों में तब्दील कर सकता है, क्योंकि मसीह का लहू एक शैतानी शख्स को एक हलीम शख्स बनाने पर कादिर है। तब वो लेना नहीं बल्कि देना सीखता है। क्या वो डाकू दंगों में लोगों को कत्ल ना करता फिरता था, लेकिन खुदा ने उसके लिए आसमान को खोल दिया? क्या पौलुस उसके मुताबिक ऐसा ना था? लिखा है कि साउल उसके कत्ल पर भी राजी जी। था, और हाँ, यीशु किसी भी दहशतगर्द को बचा सकता है अगर वो ताइब होकर लौटे और मसीह पर ईमान लाए। आसमान पर हम ये अजायब हैरान बात होंगे। को देखना है। आमीन। फिर खुदा के अपने लोगों से मामलात के हवाले से हमने जाना कि पिछली 6 कौमों में से जिनकी हमने बात की, 3 कौमें खुदा के लोगों से दूर थीं, मतलब वो खुदा के लोगों के रिश्तेदार ना थे। लेकिन 3 कौमें और भी हैं जिनके खुदा के लोगों से ताल्लुक है। हमने अदूम की बात की, मुआब की, अमून की, लेकिन चौथी आयत से हम यहूदा की बात करेंगे। मैं चौथी और 5वीं आयत पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा। खुदावंद यूं फरमाता है कि यहूदा के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने खुदावंद की शरीयत को रद्द किया और उसके अहकाम की पैरवी ना की। झूठे माबूदों ने जिनकी पैरवी उनके बाप दादा ने की, उनको गुमराह किया है। बस मैं यहूदा पर आग भेजूंगा जो यरूशलेम के कसरों को खा जाएगी। यहाँ हम यहूदा पर होने वाली अदालत के मुतालिक देखते हैं। जो खुदा के लोग हैं क्या कहेंगे? देखिए, हम यहाँ पर वही बात देखते हैं जो हमें 3रे बाब की 2री आयत में मिलती है, और दुनिया के सब घरानों में से मैंने सिर्फ तुमको बरगुजीदा किया, इसलिए तुम जिस कदर चाहो गंद फैला सकते हो। बिल्कुल नहीं। नहीं, ये वो खुदा नहीं जिसे हम जानते हैं, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी सारी बदकारी की सजा दूंगा। खुदा किसी का तरफदार नहीं, अपने लोगों का भी नहीं, मेरा और आपका भी नहीं। उसने हमारे मुतबादिल यानी यीशु मसीह से अपना हिसाब मुकम्मल तौर पर पूरा किया, और इससे लिए हम अब तक मुजरिम ना ठहराए जाएंगे। लेकिन क्या जब हम भटकते हैं तो सजा पाते हैं? खुदा की तरफ से हमारी तादीब होती है ताकि मुजरिम ना ठहरे। हमारी तादीब यहाँ होती जी। है ताकि वो मुजरिम न ठहरे। जी हाँ, बिल्कुल।
सो मैं कहूँगा कि खुदा भरोसे से यहूदा को मलामत करता है। लेकिन क्यों यहूदा का गुनाह क्या है? क्योंकि उसने उसकी शरीयत को रद्द किया, खुदा की हम शरीयत को यहूदा रद्द का किया। जिक्र कर रहे हैं ताकि नाज़रीन को याद रहे कि ये यहूदा की सल्तनत है, यहूदा की सल्तनत, जनूबी सल्तनत। 2 कबीले थे। जी, जहाँ हैकल थी, जहाँ जी खुदा हाँ, का तख्त था। बिल्कुल। जी, यहूदा और मिन्यामीन के कबीले उस सल्तनत में थे जो दाऊद के घराने की हुक्मरानी के ताबे थे। बाकी 10 कबीले जिनके मुतालिक हम आने वाली आयत में पढ़ेंगे, उन्हें या तो इसराइल का, इफ्राइम का या फिर सामरिया का नाम दिया गया। ठीक है। अगर खुदा मसीह के सलीबी काम के वसीले हमें माफ करता और हमें अब्दी सजा से छुटकारा मिलता, तो अमली तौर पर कैसे उसी पाकीज़गी की हालत में ज़मीन पर रह सकते हैं ताकि हम अपने वास्ते इलाही तादीब को दावत ना दें? देखिए, पतरस अपने पहले खत के पहले बाब में 2 बातों का तस्करा करता है, जिन बातों की तरफ आपने अभी इशारा किया। मसलन वो कहता है कि और जबकि तुम बाप कहकर उसे दुआ करते हो जो हर किसी के काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफत का जमाना खौफ के साथ गुजारो। यहाँ खौफ जहन्नुम में जाने का नहीं, क्योंकि हम उसे बाप कहते हैं और वो हमें जहन्नुम में नहीं डालेगा, बल्कि अपनी मुसाफत के अयाम खौफ के साथ गुजारो, क्योंकि जिंदा खुदा के हाथ में पड़ना हौलनाक बात है। हमारी तादीब होनी चाहिए और तादीब आसान नहीं होती, और इसीलिए हमें जरूरत है कि हम अपने मुसाफत के अयाम खुदा के खौफ के साथ खुदा परस्ती में और खुदा के खौफ में चलें। ठीक है, यहाँ पर हम एक वक्फा लेंगे, उसके बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर भी होंगे। हम बाइबल से खुदा की पाकीज़गी के मुतालिक जानना चाहते हैं कि वो किस तौर पर एक गलती भी बर्दाश्त नहीं करता, तो हमारे लिए भी बतौर ईमानदार ये मुश्किल हो जाता है कि हम उससे खुलकर बात करें। भले ही हम जानते हैं कि हम फजल के वसीले से उसके हजूर मकबूल ठहरे हैं, क्योंकि वो पाक है और गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता, फिर चाहे हम कितने ही मोहतात हो जाएं। मसलन पतरस ने गलती की, जो कि मैं कहूँगा कि एक छोटी गलती ना थी। उसने मसीह का इनकार किया, और क्या मसीह ने इसके लिए उसे सजा दी? इससे पहले वो उसे सजा देता है, पतरस वहां से बाहर निकला और जार जार रोने लगा, क्योंकि जब हम दिली और हकीकी तौबा और पछतावा जाहिर करते हैं, खुदा में सजा नहीं देता। मैं जिस कदर मसीह की मानंद होता चला जाऊंगा, मैं पाकीज़गी में बुलंद होऊंगा। मैं उससे हर रोज राब्ते में रहूंगा, हर सेकंड खुदा के साथ रहूंगा, और ये जरूरी है। और अपने गुनाहों से जुड़ा ना रहूंगा। उन कौमों का क्या जिनका यहाँ पर जिक्र हुआ, उन 3 गुनाहों के सबब से जब उसका पैमाना लबरेज हो गया और जब उन्होंने चौथा गुनाह किया, खुदावंद ने उनकी अदालत शुरू कर दी। खुदावंद बेहद साबिर है, लेकिन वो चाहता है कि हमें भी एहसास हो, और मैं चाहता हूँ कि हमारे प्यारे नाजरीन, मैं और आप हकीकी तौर पर हसास हों, और जैसे ही हमें एहसास हो कि हम भटक गए हैं, तो हमें फौरन खुदा के पास लौटना है। ठीक है। काबिल गौर बात यह है कि यहूदा के मुतालिक गुफ्तगू करते हुए आमूस कहता है क्योंकि उन्होंने खुदावंद की शरीयत को रद्द किया और उसके अहकाम की पैरवी ना की। फिर हम खुदावंद की शरीयत और उसके अहकामात की तहकीर करने के हवाले से पढ़ते हैं, झूठे मामूदों की पैरवी ने उनको गुमराह किया। सो अगर आप खुदा की शरीयत को और उसके कलाम को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका नहीं देते, तो आपकी जिंदगी में झूठ का और भी गलबा होगा। जी, झूठ का उस अहम असूल के हवाले से बात कीजिए जो आज तक लागू है कि या तो खुदा की शरीयत खुदा का कलाम है, या तो सच है, या फिर झूठ। देखिए, खुदा ने कभी अपने कलाम को हम तक पहुंचाना बंद नहीं किया है, लेकिन खुदा ही नहीं है जो दुनिया से हम कलाम होता है, और हम जानते हैं कि सारी दुनिया उस शरीर के कब्जे में पड़ी है। हम जानते हैं कि खुदा कलाम करता है, और पहले 11 मरतबा आता है कि खुदा ने कहा। पैदाइश के 3 बाब में शैतान ने भी कुछ कहा, लिखा है कि सांप ने कहा। लिहाजा और आवाजें भी हैं। खुद को खुदा के नजदीक रखना और उसके कलाम को सुनना, और रोजाना यही हमें दुश्मन के हीलों और हमलों से महफूज रखता है, यानी शैतान या सांप से। लेकिन जब हम अपनी मर्जी से खुदा से दूर हो जाते हैं, तो यकीनन कोई है जो उस रखने से दाखिल होगा। ये एइज़नहोवर की तालीम के मुतरादिफ है, जिसका मकसद था कि वो मशरिक़ वस्ता के तमाम रखनों को भर दे। शैतान का मकसद किसी भी रखने से दाखिल होना है। जब भी वो ईमानदार में खालीपन देखता है, घुस आता है, और शैतान किसी भी मौके को नहीं गवाता। वो फौरन अपना काम करता है और खाली जगह भरता है। क्योंकि आपने सच्चाई के काम को रद्द किया है, तो अब झूठ दस्तयाब है। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा हमें हर उस झूठ से महफूज रखे जो आजकल हमारे इर्द गिर्द फैले हैं। और शैतान कभी आपको ये नहीं कहेगा, आओ मैं तुम्हें एक झूठ बताऊं। शायद वो ये ना कहे कि खुदावन यूं फरमाता है। हम यिर्मयाह के 23वें बाब में पढ़ते हैं कि झूठे नबी कहते हैं कि खुदावंद यूं फरमाता है, पर खुदावंद ने नहीं फरमाया। तो अगर हम सच्चाई की बात करें तो सच्चाई वाज़ेह है, और अगर हम झूठ की बात करें तो झूठ भी वाज़ेह है। सो हमें सच में झूठ की मिलावट करने के खतरे के मुतल्लिक भी बताइए। जैसे कोई सच बोल रहा हो लेकिन उसमें झूठ भी हो, कोई झूठ बोलते हुए सच बोल रहा हो,
آپ ہمیں ان کے متعلق بتائیں جو شہد کے روپ میں زہر دے رہے ہیں۔ بالکل، جی ہم بھائی۔ ایسے لوگوں کے متعلق اموس کی کتاب میں پڑھتے ہیں، اے عدالت کو ناقدونہ بتانے والو، جب سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور میرا ماننا ہے کہ اسی اسلوب کی پابندی شیطان بھی کرتا ہے، اور اس کا طریقہ جیسا کہ ہم پیدائش 3 سے سمجھتے جی۔ ہیں، مکمل جھوٹ بولنا نہیں، وہ سچ اور فریب کو آپس میں ملاتا ہے۔ اس نے کہا کہ جس دن تم اس کو کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ یقیناً سچ ہے، ان کی آنکھیں کھل گئیں اور تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ وہ جی۔ نیک و بد کی پہچان میں خداوند کی مانند نہ بنیں۔ یہ حصہ سچ ہے، لیکن اس نے بری نیت کے ساتھ اسے توڑ مروڑ کے پیش کیا، کیونکہ وہ نیک و بد کو جانتے تھے۔ میں جانتا ہوں نیکی کیا ہے پر میں اسے کرنے کے لائق نہیں، میں جانتا ہوں بدی کیا ہے تو بھی میں اسے کرنے سے باز نہیں آ سکا۔ شیطان نے سچ اور جھوٹ کی ملاوٹ کی تاکہ وہ غریب اس جال میں پھنس جائیں۔ سچائی کو رد کرنا 2 طرح سے ظاہر ہو سکتا ہے۔ پہلی یہ کہ جب آپ سچ کہیں تو میں اسے سننے سے انکار کر دوں۔ دوسری، جب میں آپ کو سنوں تو آپ کی باتوں سے لطف اٹھاؤں لیکن ان باتوں پر عمل نہ صحیح۔ کروں۔ آپ ہمیں خدا کے کلام کو قبول کرنے کی ان 2 صورتوں کے متعلق بتائیں جو آج مشہور ہیں، جیسے کہ کبھی کبھار میں کلام کو سن لیتا ہوں لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ اگر ہم بونے کی تمثیل کو دیکھیں تو متی کے 13ویں باب میں ہمیں اس کا حوالہ مل جاتا ہے۔ خدا کا کلام جو کہ بیج ہے 4 مختلف جگہوں پر گرا، ان میں سے ایک سے شیطان نے اسے آ کر اڑا لیا، اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ سو یہ سچ سے انکار کی ایک صورت ہے۔ دوسری صورت اسے کچھ دیر کے لیے قبول کرنا ہے، یا اسے قبول تو کرنا لیکن اس پر عمل نہ کرنا ہے، جیسا کہ یعقوب رسول نے ہمیں بتایا کہ یہ دھوکا ہے، اپنے آپ کو دھوکا دینا۔ اور اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں۔ جی، جب دشمن مجھے دھوکا دیتا ہے تو یہ تباہی ہے، اور جب ایک دوست دھوکا دیتا ہے تو یہ بڑی تباہی ہے، لیکن جب میں خود اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہوں جی۔ تو یہ بدترین تباہی ہے۔ صحیح، شکریہ بھائی خدا یوسف۔ آپ ہم کو پروگرام برکت کے دے۔ اختتام پر پہنچ چکے۔ اگلی قسط میں ہم اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ آپ سب کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے جانا کہ خدا پاک ہے، ضرور ہے کہ وہ بدی کی سزا دے، پھر چاہے وہ اس کے لوگوں کے آس پاس کی قومیں ہوں یا پھر اسی کے لوگوں میں شرارت ہو، کیونکہ خدا سچائی سے عدالت کرتا ہے۔ خدا پاک ہے، وہ بدی برداشت نہیں کرتا، وہ شرارت دیکھنا نہیں چاہتا، نہ تو دنیا میں اور نہ اس کے لوگوں کے درمیان۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا اپنے لوگوں میں شرارت سے اس قدر نفرت کرتا ہے کیونکہ اس کے لوگ اس کے ساتھ اعلیٰ ترین تعلق میں ہیں۔ اگر خدا دنیا میں بدی دیکھنا نہیں چاہتا تو اپنے لوگوں میں کسی حد تک بدی کو دیکھنا نہ چاہے گا۔ ناظرین، اگر آپ کا تعلق خداوند کے ساتھ ہے تو میرے عزیزو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی روزانہ کی زندگی پاکیزہ ہو۔ آپ کی پاکیزگی آپ کا اثاثہ ہے، یہ آپ کو روزانہ دعا میں خدا کے پاس لاتا ہے۔ دعا آپ اور خدا کے بیچ روحانی فضا کو صاف کرتی ہے۔ سو آپ بائبل پڑھیے اور خدا میں مسرور رہیے۔ عزیزو، گناہ خداوند تک جانے والے راستے میں رکاوٹ ہے۔ وہ آپ کو محبت بھرے خدا کی تعظیم کا نشانہ بنا سکتا ہے تاکہ آپ اس کی حضوری میں داخل نہ ہو پائیں۔ سو پاکیزگی میں رہیے، اس پاکیزگی میں جس کے بغیر آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو سب مل کر اتفاق کریں کہ خداوند پاکیزگی کا بہت خیال رکھتا ہے۔ اگرچہ دنیا نے اس کی تحقیر کی کیونکہ ساری دنیا شیطان کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے، لیکن ہمیں احترام کرنا ہے کیونکہ ہم خدا کا گھرانہ ہیں۔ خدا کا احترام اس کے گھر، اس کے گھرانے میں لازمی ہے۔ اگر وہ باپ اور مالک ہے تو اس کا خوف اور دبدبا اور احترام ضروری ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہماری اس سزا کو معاف کیا جو اب دی تھی۔ اب سے جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، ان سے حساب کتاب نہ کیا جائے گا۔ سو جو کوئی مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ سزا نہ پائے گا، لیکن خدا جو محبت سے بھرا ہے، پاک خدا ہے جو اپنے لوگوں کی پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے اور ان میں پاکیزگی دیکھنا چاہتے ہیں۔ سو اگر آپ خود کو گناہ میں پاتے ہیں، اگر آپ گناہ کرنے پر بضد ہیں تو آپ خود کو تعذیب کے خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ سو خدا کے پاس لوٹ آئیے، اس کے ساتھ وقت گزاریں، اسے موقع دیں کہ وہ آپ کو خالص بنائے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔